See, the only difference of mean deviation for ungroup and discrete, in ungroup the formula is sigma modulus x minus x bar upon n, and for group, discrete and continuous, the formula is same. It is fi modulus x minus x bar upon n. So what you have to do, you just have to multiply fi with our modulus x minus x bar. That is the only thing you are going to do. So illustration number 8 हमने किया था last lecture में. You can see over here. Now we are going to do illustration number 9, which is on page number 136. Let us start. Illustration number 9, page number 136. हाँ जी, क्या है question? Let us see. Calculate the mean deviation and coefficient of mean deviation of typing time from the following information of time in minutes taken to type a report of 32 typists. So typing time, बेटा जो टाइपिंग टाइम है वो हमारा क्या बन जाएगा, xi बराबर है, और फिर हम ढूंढेंगे नंबर ऑफ टाइपिस्ट, वो हमारा बन जाएगा fi. सो 10, 11, 12, 13 and 14. बोलो fi क्या है? 2, 8, 12, 8 and 2. चल, सबसे पहला काम करना है, हमें x बार ढूंढना है. So x बार के लिए मुझे कौन सा कॉलम ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे? To find x bar, I will first have to multiply fi xi. So बोलो fi xi, 10 2 जा 20, 11 8 जा 88, 12 12 जा 144, 13 8 जा 104, and 14 2 जा 28. So sigma fi xi is equal to, please tell me what is sigma fi xi? 20 plus 88 plus 144 plus 104 plus 28. That is 384. ठीक है? So we got x bar. So x bar is sigma fi xi upon n. And what is my n? My n is 12 and 10, 22 and 32. So it is 384 divided by 32. So divided by 32 करोगे, so your x bar is 12. Okay. So as my x bar is 12, I will find the remaining columns. बोलो मीन डेविएशन के लिए सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा x माइनस एक्स बार, उसके बाद हम उसका मॉड्यूलस करेंगे. सो इट इज मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार, और फिर उस मॉड्यूलस को हम लोग fi से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मीन डेविएशन हम लोग किसका ढूंढ रहे हैं बेटा? डिस्क्रीट का. तो उसमें fi से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कंपल्सरीली. चलिए बोलिए, व्हाट इज x बार? 12. सो 10 माइनस 12 है ना, x माइनस एक्स बार. सो 10 माइनस 12 माइनस 2, 11 माइनस 12 माइनस 1, 12 माइनस 12 0, 13 माइनस 12 1, 14 माइनस 12 2. अब इसका मॉड्यूलस. सो मॉड्यूलस में नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिमेन्स पॉजिटिव. और ये जो मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार आया, उसको हम इस fi से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस टू कॉलम्स. सो 2 2 जा 4, 8 1 जा 8, 12 0 जा 0, 8 1 जा 8 and 2 2 जा 4. तो सिग्मा fi modulus x minus x bar is 24. ठीक है? And now we are going to find mean deviation. So mean deviation is sigma fi modulus x minus x bar upon n. So it is 24 divided by n is 32. So 24 divided by 32, that comes to 0.75. So we got mean deviation, we got mean. So अब मैं ढूंढ लूंगा coefficient of mean deviation. So coefficient of mean deviation की formula क्या है? Mean deviation upon mean. So mean deviation is 0.75 divided by mean is 12. So divide by 12 करोगे.
So it is 0.0625. Okay, what does illustration number 10 states? अब वो continuous वाला है बेटा. 20 children are selected for a district level spelling test. The distribution of their marks out of 50 is given below. So marks की आपको दी हुई है क्लास. चलो, तो मार्क्स की आपको क्लास दी है. So our classes are 0 से 10, sorry 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39 and 40 से 49. ठीक है, so these are your classes. अब उसकी फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ चिल्ड्रन. सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो हमारा FI है. हाँ जी, क्या है आपका FI? 1, 3, 8, 6 and 2. चलिए, सबसे पहले हम ढूंढेंगे मिड वैल्यूज. बोलो मिड वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? क्योंकि मुझे सबसे पहला काम है एक्स बार ढूंढना. तो एक्स बार के लिए मुझे चाहिए FI XI. बाकी सब तो बात की बात है. पहला काम ही एक्स बार करना है. उसके बाद x माइनस एक्स बार, उसके बाद मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार, और उसके बाद इसको FI से मल्टीप्लाई करना है, XI माइनस एक्स बार. ठीक है, चलो मिड वैल्यू. तो 0 + 9 डिवाइड बाय 2 यानी 4.5. और अब देख सकते हो क्लास लेंथ 10-10 का है, तो जस्ट गो ऑन एडिंग 10-10. 14.5, 24.5, 34.5 एंड 44.5 है ना. क्लास लेंथ 10 थी तो मैं 10-10 प्लस करता गया. अब बोलते जाओ बेटा FI XI. बोलो 1 × 4.5, 4.5. फिर 14.5 × 3, that is 43.5. फिर 24.5 × 8, that is 196. 34.5 × 6, that is 207. 44.5 × 2, that is 89. So sigma FI XI will be 4.5 plus 43.5 plus 196 plus 207 plus 89. That comes to 540. And what is my N? 8 और 3 11, 12, 12 और 8 20. चलो, so first of all let us find out x bar. So x bar is equal to sigma FI XI upon N. So 540 divided by 20. Is it 27? So my x bar Yes, is sir. 27. Okay बेटा, thank you. अब x minus x bar करेंगे अपने बेटा. So x minus x bar. So बोलो 4.5 minus 27. 4.5 minus 27. That comes to minus 22.5. Thank you. 14.5 minus 27. Minus 12.5. Minus 12.5. Very good. 24.5 minus 27, that is minus 2.5. With 34.5 minus 27, that is 7.5. चलो अब देखो 10-10 प्लस करते जाना है ना. 44.5 minus 27, that is 17.5. और अब मॉड्यूलस है बेटा, मॉड्यूलस है तो मॉड्यूलस में जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगा. तो ये माइनस 22.5 है तो वो प्लस 22.5 हो जाएगा. माइनस 12.5 प्लस 12.5 हो जाएगा. माइनस 2.5 प्लस 2.5 हो जाएगा. तो 7.5 एज इट इज रहेगा. ठीक है, और लास्ट वाला 17.5. और अब इसको FI से मल्टीप्लाई करो. तो FI को मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई करो. सो बोलो 1 × 22.5 is 22.5 है ना. फिर 12.5 मल्टीप्लाई बाय 3 એટલે 37.5. फिर 2.5 into 8 એટલે 20. फिर 7.5 into 6 એટલે 45.
फिर 17.5 into 2 that is 35. और अब इसका टोटल सिग्मा fi मॉडुलस x minus x bar. So 22.5 plus 37.5 plus 20 plus 45 plus 35. That is 160. चलिए फिर ढूंढते हैं सबसे पहले मीन डेविएशन. So mean deviation is sigma fi modulus x minus x bar upon n. So it is 160 divided by 20. So that comes to what? 8. Okay, coefficient of mean deviation is mean deviation upon mean. So mean deviation is 8 divided by 27. So 8 divided by 27 karoge, so you will get 0.30. This is the. Okay, what is the illustration 11? From the following information of fortnight sale of two-wheeler by 30 dealers of a city, find the mean deviation. Okay, अब इसमें कोएफिशिएंट नहीं पूछा है, खाली मीन डेविएशन पूछा है, बट उसके लिए मीन तो ढूंढना ही पड़ेगा बेटा. तो चलो नंबर ऑफ टू व्हीलर्स की हमको क्लास दी है. सो नंबर ऑफ टू व्हीलर्स, फिर उसकी अपन ढूंढेंगे फ्रीक्वेंसी, तो उसकी क्लास कैसी है? 12 to 16, 17 to 21, 22 to 26, 27 to 31 and 32 to 36. और नंबर ऑफ डीलर्स, उसकी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ डीलर्स की 2, 3, 14, 8 and 3. चलिए सबसे पहला काम मिड वैल्यू ढूंढना है. सो बोलो मिड वैल्यू xi. We just have to find the mid value, nothing else. बोलो 12 plus 16, 28. 28, yes 14. फिर 17 plus 21. अच्छा क्लास लेंथ ढूंढ लो ना. 12, 13, 14, 15, 16. 5 की क्लास लेंथ है, आप देख सकते हो बेटा. इंक्लूसिव है ना. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. So you can see class length is 5. So just go on adding 5. So plus 5, plus 5, plus 5 और plus 5. So बोलो fi xi 14 2s 28, 19 3s 57, 24 multiplied by 14 336, 29 multiplied by 8 232, 102. 102. Thank you. So sigma fi xi please. 755. Okay. And what about our n? N is And 30. 30. बराबर है. So now I'll find x bar first of all. बोलो बेटा, what is x bar? It is sigma fi xi upon n. So it is 755 divided by 30. So Upon 30. 25.1667. इधर 17 ले लेंगे ना बेटा आपने, बराबर है. हाँ. तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, पॉइंट में आया तो थोड़ा कैलकुलेशन हमारा पॉइंट में हो जाएगा. ठीक है. तो सबसे पहले हमें ढूंढना है x माइनस एक्स बार, फिर उसका मॉड्यूलस करेंगे, दैट इज मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार, और फिर इस मॉड्यूलस को हम लोग fi से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. सो बोलो सबसे पहले x बार इज 25.17. सो बोलो x माइनस एक्स बार, ये रहा x आपका, है ना. इस x को x बार में से माइनस करो. बोलो 14 माइनस 25.17 Minus 11.7. वेरी गुड. फिर 19 Minus 6.7. माइनस 6.17. इन शॉर्ट 5 प्लस करते जाने का ना. अब इसमें 5 प्लस करो, तो हाँ. प्लस 5 करोगे એટલે -1.17 आएगा. चेक कर लो, करना हो तो
कर लो 24 minus 25.17 you will get minus, खाली प्लस 5 करते जाओ. हाँ. अब minus 1.17 में 5 प्लस कर दो, मतलब you will get 3.83. चेक करना हो तो कर भी सकते हो. 29 minus 25.17 so it is 3.83. इसमें 5 प्लस करो 8.8. हाँ. अब इसका हम कर देंगे मॉड्यूलस. सो मॉड्यूलस में जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा. ये 3 नेगेटिव थे वो पॉजिटिव बन जाएंगे, और जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा. हाँ. और अब इस मॉड्यूलस x माइनस x बार को fi से मल्टीप्लाई करो. चलो 11.17 मल्टीप्लाई बाय 2 22.34. 22.34. 6.17 multiplied by 18.51. 18.51. Very good. फिर 1.17 into 14. 16.38. 16.38. 16.3. 3.83 multiplied by 8. So it is 30.64. With 8.83 multiplied by 26.49. 26.49. Correct. और अब इसका आपने टोटल कर देंगे तो सिग्मा fi मॉड्यूलस x माइनस x बार 114.36. 18 कितना बेटा? 114.36. 114.36. ठीक है. नाउ बेटा अब हम ढूंढेंगे हमारा मीन डेविएशन. सो बोलो व्हाट इज आवर मीन डेविएशन की फॉर्मूला? मीन डेविएशन इज सिग्मा fi मॉड्यूलस x माइनस x बार अपॉन n. So it is 114.36 divided by n is 30. So divide by 30. 3.81. पूछा नहीं है, अगर पूछा होता सपोज coefficient of mean deviation. So coefficient of mean deviation is mean deviation upon mean. So it is 3.81 divided by 25.17. So divide by 25.17. So it is 0.15. Answer. पूछा नहीं था बट अपने ढूंढ लिया. The last measure of dispersion की, that is standard deviation. Now see, standard deviation is very similar to mean deviation. ठीक है. अब standard deviation को ढूंढने की there are two methods. मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ. सबसे पहले डायरेक्ट मेथड की बात कर लेते हैं. ओके, अगर डायरेक्ट मेथड से मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है तो उसमें अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड. ठीक है. अनग्रुप में फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला है, ध्यान रखना इसमें. पहली है S इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस x बार होल स्क्वायर अपॉन n. ये देखो मीन डेविएशन में मॉड्यूलस था, इसमें उन्होंने मॉड्यूलस हटा के क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया और उसका पूरा रूट कर दिया. और ग्रुप्ड में, ग्रुप मतलब आप जानते हो डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस. डिस्क्रीट, इन दोनों में स्टैंडर्ड डेविएशन की जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट सिग्मा fi इंटू x माइनस x बार होल स्क्वायर अपॉन n. जस्ट लाइक मीन डेविएशन, उसमें मॉड्यूलस था, इसमें खाली मॉड्यूलस हट गया. बराबर है. ये डायरेक्ट मेथड. अब मैं आपको बता रहा हूं शॉर्टकट मेथड. ओके, अब अगर शॉर्टकट मेथड से मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा अनग्रुप्ड की. ओके, उसमें फॉर्मूला है S इज इक्वल टू अंडर रूट
सिग्मा DI स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा DI अपॉन n द होल स्क्वायर. Discrete S is equal to under root of sigma Fi DI square upon n minus sigma Fi DI upon n the whole square. And for continuous, S is equal to under root of sigma Fi DI square upon n minus sigma Fi DI upon n the whole square multiply by C. ये ध्यान रखना, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय C, क्योंकि हम सब जानते हैं DI मतलब क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म DI? DI क्या होता है बेटा? DI is xi minus a. For discrete also DI means xi minus a. Okay, and for continuous DI is xi minus a upon C. बराबर है. इसीलिए वो जो अपॉन सी है यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू सी हो जाएगा. अब बेटा मैंने आपको बोला कि अनग्रुप डायरेक्ट मेथड में दो फॉर्मूला है. अब मैं आपको दूसरी जो फॉर्मूला है वो बताने जा रहा हूँ. सो प्लीज एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट. जो दूसरी फॉर्मूला है ना वो शॉर्टकट में से ही ली गई है. और इसमें करना क्या है, आई विल टेल यू. ये जो DI है ना उसकी जगह पे खाली xi कर दो, એટલે रूट ऑफ सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n द होल स्क्वायर. और यहाँ पे दूसरी फॉर्मूला, अब यहाँ पे खाली Fi मल्टीप्लाई कर दो. तो सिग्मा, देखो बेटा सेम फॉर्मूला, खाली DI की जगह पे xi, એટલે सिग्मा Fi xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा Fi xi अपॉन n द होल स्क्वायर. सो जो डायरेक्ट की दूसरी फॉर्मूला है इट इज सिमिलर टू शॉर्टकट की फॉर्मूला. बराबर है. तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करनी है. और ये लर्न कैसे करनी है आपको, यू विल राइट दीज फॉर्मूलाज 5 टाइम्स. 5 बार आपको ये फॉर्मूला लिखनी है, ठीक है. और इसका कोएफिशिएंट भी है, तो जिसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. सो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन. क्या फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन. ठीक है बेटा. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. ये फॉर्मूलाज आप लोग 5-5 बार लिखकर मेरे को दोगे.